Hello everyone, am I audible? Can you all please turn on your camera so that I can see all of you? Hi, thank you so much. So nice to see all of you. Am I audible? You can show me a thumbs up. If whenever you want to say yes, you can say a thumbs up. Okay. Can you all see my screen also? Is my screen visible? Okay. So first of all, I'd like to welcome all of you to this class. And this is going to be the basics of computer. Today we will be starting with the basics of computer. Give me just a minute. So first of all, can you tell me how many of you are little bit handy with computer, or you are completely newcomers and never used? First of all, show me a thumbs up if you're completely new to the computer, using it for the first time. Can you show me a thumbs up if you're Okay, let me just mute just a minute. Okay, so you have to show me, first of all, turn on the cameras, and so that, you know, I'll be able to connect with you. That would help me connecting with all the participants. And you have to show me a thumbs up if you are doing it for the first time. If you are like, you know, going to use the computer for the first time. Nobody is a newcomer. That is good. Chalo, that is good. So first of all, I'd like to give my introduction. My name is Ayushi, and I started, I'm a graphic designer by profession. I love to draw also, like I'm a drawing teacher as well. I'm learning. And I started doing graphic designing in 2012. So it is like, you know, I'm about to complete my 10 years in graphics. And I'll be teaching you the basics of computers first, and then we will be moving towards the graphic designing part. Okay. So first of all, let me just share my screen. Is my screen visible to everyone? Okay, let me just tell you the basic format of the class. For 30 to 45 minutes, we will be doing a theory kind of session. And after that, we will be moving towards the doubt session. Okay, so I'm aiming to have a doubt session कि हर क्लास के बाद at least 15 minutes का doubt session और a conversational session हम लोग कर पाएं, ताकि we can connect and we can understand कि आप लोग कैसा कर पा रहे हो. आपको अगर कोई doubt है तो we can clear that. So first of all, what is a computer? I'd like to know from you. If you can share, any one of you can raise hand and tell me what is basically a computer in your views. आपको क्या लगता है computer क्या है, किस तरह से हमें help करता है? Anything you want to share? Actually, ma'am, I just want to share. Computer is an electronic machine. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके थ्रू हम अपना काम करते हैं. लाइक हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक हम गूगल कर सकते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए. ठीक है. और हॉस्पिटल्स में यूज होता है, स्कूल्स में यूज होता है. मतलब मोस्ट ऑफ द प्लेसेस कंप्यूटर के बिना तो आज के टाइम में कुछ भी नहीं है.
because internet is compulsory for everything. Very good. Yes. Okay. It's a need of an hour these days. Computer is in need of an hour these days. We can do shopping online. Everything has been done on computer. Technologically, we have to be perfect in everything. Even teachers, even students, and even everyone. Right. So I would need it. Yes, computers are actually everywhere. आप अगर if you look around you, आपको हर जगह कंप्यूटर दिखेगा. In your washing machine, वहां पे भी एक छोटा सा कंप्यूटर होता है. आजकल तो रेफ्रिजरेटर्स आर ऑल्सो कमिंग, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स, द स्मार्ट वॉचेस दैट वी आर वेयरिंग, आर मोबाइल्स, आर टैबलेट्स, लैपटॉप्स, एवरीथिंग दैट यू आर यूजिंग, मतलब इट इज बीइंग यूज्ड एवरीवेयर. Why it is being used everywhere? Because it is making our life so easy and comfortable. मतलब बहुत सारे लोगों का काम आप अकेले कर रहे हो और बहुत जल्दी कर रहे हो. That is what that computer आपको enable करता है ये चीज करने के लिए. इसलिए कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे. हर पर्सन जो बहुत अच्छा ऑनलाइन कर रहा है, क्योंकि ऑनलाइन बहुत स्कोप है. वी ऑल नो कि ऑनलाइन बहुत कुछ कर सकते हो. यू बिकम अ वन मैन आर्मी जब आप कंप्यूटर अच्छे से यूज करना स्टार्ट कर देते हो, एंड व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग इट, तो आप बहुत सारे लोगों का काम करते हो, एंड दैट इज हाउ यू आर एबल टू गेट एक्सपोजर. आप फिर अपना ऑनलाइन बिजनेस या जो भी है आप स्टार्ट कर पाते हो. ओके, सो okay, तो I'll give you a roadmap of our course. Basics of computers में हम क्या क्या करने वाले हैं. तो सबसे पहले तो what is computer we will learn, इसका importance क्या है, इसका scope क्या है. Okay, उसके बाद how it is making our life so easy. उसके बाद कंप्यूटर का एक इंटरफेस होता है. ओके, सो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर वी विल लर्न. कंप्यूटर का इंटरफेस, जैसे हम मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल का जो, आई शो यू, लाइक वी आर यूजिंग मोबाइल, है ना. तो मोबाइल में वी आर हैविंग आइकन्स. उसके बाद वी आर ओपनिंग एनी एप्लीकेशन. तो एक इंटरफेस है, एक सिस्टम है उसको यूज करने का. इंटरफेस का मतलब यही होता है कि आपका होम स्क्रीन आता है, उसमें आप कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, कहीं से आप कुछ करते हो, कुछ बटन्स को प्रेस करके आप वॉल्यूम ऊपर नीचे कर लेते हो, कुछ बटन से आप साइलेंट मोड ऑन कर लेते हो. तो ये भी एक तरह का इंटरफेस है. कंप्यूटर का इंटरफेस इज डिफरेंट. तो वो आप एक बार जब आप उससे हैंडी हो जाओगे तो दैट वी विल लर्न. उसके बाद टाइपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन यू आर न्यू आपको टाइपिंग आनी चाहिए. आपको लेटर्स, क्योंकि कंप्यूटर में एबीसीडी की तरह से प्लेस नहीं होता, इट इज प्लेस डिफरेंटली, है ना. लेटर्स आर प्लेस डिफरेंटली. तो वी नीड टू प्रैक्टिस लिटिल बिट. थोड़ा सा प्रैक्टिस करके वी कैन लर्न कि कौन सा लेटर किधर है, और शॉर्टकट कीज जो होती है उसके थ्रू आप जल्दी अपने काम को कर पाते हो. इट स्पीड्स अप योर वर्क अ लॉट. जब आप करने लग जाओगे काम, यू विल रियलाइज. तो टाइपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वी विल लर्न टाइपिंग. हम नोटपैड, एमएस वर्ड, पेंट. पेंट इज क्रिएटिव. नोटपैड और एमएस वर्ड तो है टेक्स्ट बेस्ड, लेकिन पेंट में आप क्रिएटिव चीजों को देखेंगे हम लोग कि क्या क्या क्रिएशन वी कैन डू थ्रू पेंट, और छोटी मोटी चीजें वी कैन डू. तो वी विल लर्न दैट. उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कम्स विच इज गोइंग टू कवर मेनी क्लासेस, दैट इज इंटरनेट. इंटरनेट में बहुत सारी चीजें हैं. गूगल क्रोम कैसे यूज करना है, हाउ यू कैन यूज गूगल टू गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट. क्योंकि इंटरनेट इज सो पावरफुल. इट इज लाइक, यू नो, जब आपके पास एक लैपटॉप है विच इज नॉट कनेक्टेड टू इंटरनेट, इट मीन्स के उसमें आप उसका एक लिमिटेड एक्सेस है. आप जो भी चीजें कर रहे हो वो बहुत लिमिटेड बेसिस पे जो कंप्यूटर के अंदर है वो आप निकाल सकते हो. बट द मोमेंट यू कनेक्ट इट विद इंटरनेट, उसके पास अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन है फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब इन रियल टाइम. मतलब लेटेस्ट एप्लीकेशन, कहीं यूएस में, कहीं बाहर किसी कंट्री में किसी ने कुछ अपडेट किया, इमीडिएटली यू आर गेटिंग इट. तो ये इतना बड़ा एक्सेस आपको मिलता है इंटरनेट से. इसलिए वी विल लर्न द इंटरनेट, और इसके जो भी यूजेस हैं, जो भी चीजें हैं, वी विल लर्न दैट. Okay, and in the last we will learn the shortcut keys. Shortcut keys भी बहुत important है, as I told you, copy paste और भी बहुत सारी चीजों के shortcut keys होते हैं. We will learn that. Okay, so I hope it is clear. आपको पूरा road map समझ आ गया how we are going to proceed in this course. Okay. So now comes what is computer. एक जो बेसिक सी डेफिनेशन है, कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट इज एक्सेप्टिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डिजिटलाइज्ड डेटा. व्हाट इज डिजिटलाइज्ड डेटा? क्या होता है, आपके पास एक फोटो है जो आप जैसे हम निकालते हैं ना, जो हार्ड कॉपी में जो फोटो होता है वो हम क्लिक करके पहले निकालते थे.
उसको आप यूज नहीं कर सकते हो। मान लो आपको वो फोटो को अपने वीडियो में यूज करना है या फिर आपको उसका एक ग्रीटिंग कार्ड बनवाना है, तो आप उसको यूज नहीं कर सकते, है ना, बिकॉज इट इज इन फिजिकल फॉर्म। अब उसको डिजिटलाइज आप कैसे करोगे? या तो आप उसको स्कैन कराओगे या फिर आप उसका फोटो क्लिक करोगे अपने फोन से। नाउ यू कैन यूज इट इन योर वीडियोस। अब आप उसका वीडियो बना सकते हो। तो कंप्यूटर में जितनी भी इंफॉर्मेशन आप यूज करते हो वो डिजिटलाइज फॉर्म में यूज होती है। कहीं पे भी अगर कुछ भी डाउट आता है ना, यू कैन लेट मी नो। लेट मी जस्ट गो थ्रू द चैट बॉक्स ऑल्सो। ओके, एम आई गोइंग वेरी फास्ट? प्लीज लेट मी नो अगर आप लोग को सारी चीजें क्लियर हो रही है। और ओके, तो वो फोटो जो आपने क्लिक किया है, नाउ इट हैज बिकम डिजिटलाइज। अब वो आपके फोन में है, अब आप उसको वीडियो में भी यूज कर लोगे। आप कुछ भी चीज क्रिएट कर रहे हो, सीडी का कवर बनाना है, अपनी बुक का कवर बनाना है, यू कैन यूज दैट। दैट इज कॉल्ड अ डिजिटलाइज्ड फॉर्म। ओके, तो कंप्यूटर वो डिवाइस है जो डिजिटल इंफॉर्मेशन ही इनपुट करता है, या फिर वो किसी भी नॉर्मल इंफॉर्मेशन को डिजिटलाइज करेगा। पहले पहले वो अपनी लैंग्वेज में उसको समझेगा, उसके बाद में वो ले लेगा उसको, एंड देन इट इज रेडी टू प्रोसेस ऑन दैट। वो प्रोसेस किसी भी तरह का हो सकता है, एंड मैनिपुलेट्स इट द सेम थिंग, कि वो उसको प्रोसेस करेगा इट फॉर सम रिजल्ट बेस्ड ऑन अ प्रोग्राम। अब चाहे आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, चाहे आप उसको अपना एक डॉक्यूमेंट बना रहे हो, उसमें पुट कर रहे हो, दैट डिपेंड्स आप क्या करने वाले हो। सॉफ्टवेयर और सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस on how the data is to be processed. This is the simplest definition of computer, कि कंप्यूटर किसी भी चीज का इंफॉर्मेशन आपसे लेता है, उसको प्रोसेस करता है और वो आपको वापस दे देता है। ओके, ओके, सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस टू लर्न कंप्यूटर? क्यों इट इज इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर सीखना? सबसे पहले तो आई लाइक टू शेयर कि किस किस जनरेशन के लोगों के लिए एक्चुअली इट इज यूजफुल फॉर एवरीवन। जो यूथ है, यूथ मतलब दोज हु आर अबाउट टू कंप्लीट देयर 10th 11th, जो कर रहे हैं, उसके बाद में दे वांट टू वर्क फॉर देयर पॉकेट मनी और दे वांट टू स्टार्ट वर्किंग। बहुत सारी फैमिलीज में ऐसा होता है, दे वांट टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। तो दैट इज द बेस्ट वे कि वो कंप्यूटर को सीख कर उसके थ्रू अपना जो भी उनका बेसिक स्किल है उसको ग्रो कर सकते हैं, एंड देन दे कैन स्टार्ट अर्निंग थ्रू दैट। ठीक है, फॉर लेडीज जो हाउस वाइफ्स होती है, फॉर मदर्स या फिर दोज हु आर मैरिड, दे वांट टू डू समथिंग। अब क्यों विमेन के लिए बोलते हैं कि सबसे बेस्ट है कंप्यूटर सीखना, ग्राफिक्स सीखना? क्यों उनके लिए सबसे बेस्ट है? फर्स्ट ऑफ ऑल, देर आर नो टाइम बाउंडेशन। आपके ऊपर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। जैसे आप जॉब जाते हो तो सुबह आपको जॉब के लिए निकलना है, रात को आप घर पे वापस लौट कर आ रहे हो, तो आपका एक टाइम है। आप अपनी फैमिली को अकॉर्डिंगली टाइम नहीं दे पाते हो। बट वेन यू आर लर्निंग, वेन यू आर डूइंग थिंग्स थ्रू कंप्यूटर और थ्रू ऑनलाइन, आपके पास कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि इतने ही टाइम में मुझे ये चीज करनी है ना। यू कैन डू इट व्हेनेवर यू गेट टाइम। आपको रात में, दिन में, व्हेनेवर यू आर गेटिंग टाइम, यू डू योर वर्क एंड यू डिलीवर दैट एंड यू गेट पेड फॉर इट। उसके बाद आप उसको घर से कर सकते हो, कहीं बाहर हो आप बाहर से भी कर सकते हो। यू कैन डू इट फ्रॉम एनीवेयर, यू जस्ट नीड योर लैपटॉप। कई बार ऐसा होता है कि हम स्मॉल सिटीज से या फिर टाउन से बिलोंग करते हैं, तो वी डू नॉट हैव दैट एक्सेस। वी आर वेरी एजुकेटेड, बहुत अच्छी डिग्रीज है हमारे पास, पर फिर भी जॉब नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमारी सिटी में जॉब ही अवेलेबल नहीं है इतनी अच्छी। बट कंप्यूटर के थ्रू आप इंडिया में बैठ के, अपने घर पे बैठ के आप पूरे ग्लोब को एक्सेस कर रहे हो और कहीं से भी प्रोजेक्ट ले रहे हो और उनको डिलीवर कर रहे हो। यू आर एबल टू क्रिएट वैल्यू ऑल ओवर द ग्लोब, नॉट जस्ट इन इंडिया और नॉट जस्ट इन योर सिटी। ओके, उसके बाद कैन अर्न बेटर देन जॉब्स। जब आप फ्रीलांसिंग में स्टार्टिंग करते हो, जब आप जॉब करते हो, तो जॉब में क्या एक प्रोफाइल होता है, उसके बेसिस पे आपका सैलरी फिक्स कर देते हैं, है ना। फिर आप कर रहे हो 1 साल 2 साल में लिटिल लिटिल इंक्रीमेंट्स यू गेट। बट एक्चुअली फ्रीलांसिंग में क्या होता है, द मोर यू वर्क द मोर यू अर्न। आपको एक बार, इफ यू हैव लर्न हाउ टू स्टार्ट टेकिंग प्रोजेक्ट्स, थोड़ा सा टाइम लगेगा टू अंडरस्टैंड हाउ द मार्केट वर्क्स। एक बार अगर आप समझ जाते हो ये चीज, तो आप एक्चुअली स्टार्ट कर पाओगे कि जितना काम कर रहे हो उतना अर्निंग आप कर सकते हो। यू नो हाउ टू टेक अप द प्रोजेक्ट्स एंड यू कैन डिलीवर देम। जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से यू कैन वर्क।
ओके और एक्चुअली जितना मतलब लोग मंथली अर्न करते हैं यहाँ पे फ्रीलांसिंग में, जब आप अच्छा हो जाते हो, अच्छा काम करते हो, तो आपका वो उतना अमाउंट तो आपको एक प्रोजेक्ट से मिलता है विच गेट्स कंप्लीटेड विद इन 7-8 days, डिपेंड करता है, 1 वीक या 10 दिन से ज्यादा कोई प्रोजेक्ट नहीं चलता, और यू अर्न बेटर देन दैट. तो आप एक्चुअली लिटरली व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग, जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी, when I was doing a job, my first job was for 3,000 rupees per month. That was a part-time job and I was student. मैंने 6 months graphic designing किया and then I started doing a job internship की तरह से. So I was earning 3,000 per month. उसमें मैं 2 घंटे के लिए जाती थी and I used to do it. But उसके बाद जब मुझे freelancing के बारे में पता चला, I started doing freelancing. तो मेरा जो first project था जिसमें मुझे सिर्फ एक logo I think edit करना था या ऐसा कुछ था, and I got around 3,500 or something for that one work that I did, which was my monthly salary at that time. I'm talking about 2012 or 13. तो उस टाइम पर वो एक प्रोजेक्ट का कॉस्ट उतना था. Then I started doing, I used to make paintings and all that. तो for every painting I was charging 6,000 rupees, जो मैं एक दिन में कर लेती थी, 2 दिन में कर लेती थी ज्यादा से ज्यादा, but I was able to make that much. तो इट वॉज सो इफेक्टिव. आप जिस भी स्किल में अच्छे हो ना, ऐसा नहीं है आपको क्रिएटिव ही होना है या आपकी ड्राइंग ही बहुत अच्छी होनी चाहिए. आप जिस भी स्किल में अच्छे हो, यू कैन प्रेजेंट दैट. आप उसको इतना अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे और उस चीज में यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी इन दैट पर्टिकुलर वे. ओके, उसके बाद है ग्रोथ रेट इज ऑब्वियसली फास्टर. जब आप जॉब करते हो तो जॉब्स में क्या होता है, मंथली yearly they give you increment of 3,000 4,000, है ना. बट जॉब्स में क्या होता है, आपका क्वालिटी जैसे जैसे इंप्रूव होगा, इफ यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 3 years 4 years, जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है एंड व्हेन यू बिकम रियली गुड एट योर वर्क, आप बहुत अच्छा चार्ज कर सकते हो डिजाइनर्स को, क्योंकि डिजाइनिंग इज समथिंग विच कैन नॉट बी डन बाय एवरीवन. उसके लिए एक सेंस चाहिए, और जब आप वो डेवलप कर लेते हो, लेडीज आर मोस्टली वेरी क्रिएटिव. बहुत सारी लेडीज को मोस्टली मैंने देखा है शौक होता ही है कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने का. इट इज वन ऑफ देयर हॉबीज. तो जब आप वो करने लगते हो, व्हेन यू बिकम गुड एट योर स्किल्स, तो आप इतना वैल्यूएबल कंटेंट अगर प्रोड्यूस कर रहे हो तो बहुत आपकी ग्रोथ भी बहुत जल्दी होती है. इट मल्टीप्लाइज ईयरली. ऐसा नहीं होता कि आपका थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट वो लोग 5% 10% कर रहे हैं. नो, यू कैन एक्चुअली बिकम डबल इन नेक्स्ट ईयर, देन यू कैन इवन ग्रो फर्दर. तो ग्रोथ आपके हाथ में है पूरी. आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, इट इज कंप्लीटली इन योर हैंड्स. हमें लगता है एक्चुअली, आई नो मोस्ट ऑफ द मदर्स माइट हैव जॉइंड कि ठीक है हम ज्वाइन करेंगे थोड़ा बहुत मंथली, वी विल बी एबल टू डू, और इससे काम हो जाएगा, मतलब एटलीस्ट विल बी एबल टू मेक जितना हमें रिक्वायरमेंट है उसका. बट इट इज नॉट लाइक दैट. इट इज अ वास्ट फील्ड और इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि आई हैव बीन वर्किंग ऑनलाइन सिंस लॉन्ग, तो मुझे पता है कि बहुत स्कोप है. मतलब आप लिटरली अपने फील्ड के नोन पर्सन्स बन सकते हो इफ यू आर गुड एट ऑनलाइन, यू नो, इफ यू आर गुड एट वर्किंग ऑनलाइन. ओके, उसके बाद इट हेल्प्स यू बिकमिंग अ ब्रांड. आई टोल्ड यू ना कि आप अपनी फील्ड में यू विल बी नोन फॉर दैट. आप अगर सपोज यू आर गुड एट मेकिंग ज्वेलरी और यू आर गुड एट एम्ब्रॉयडरी, या फिर आप बच्चों की ड्रेसेस बहुत अच्छे बनाते हो, आप उसी को प्रमोट कर रहे हो, उसी से रिलेटेड. ग्राफिक डिजाइनिंग का रोल कहाँ पर आता है, जैसे आप अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ किड्स वेयर. आप बच्चों के जो छोटे बिल्कुल होते हैं ना, जो न्यूली बॉर्न बेबीज होते हैं, उनके क्लोथ्स बनाने में इफ यू आर वेरी गुड एट. आई एक्चुअली हैव अ बेबी, तो मेरे दिमाग में वही सब चलता है, सो आई एम गिविंग दैट एग्जांपल. तो यू स्टार्ट प्रमोटिंग दैट. नाउ हाउ यू स्टार्ट प्रमोटिंग दैट, उसके लिए आपको एक डिजाइनर की नीड पड़ती है. चाहे आपको और किसी की भी नीड ना पड़े, बट यू विल नीड अ डिजाइनर. एंड इफ यू आर अ डिजाइनर योरसेल्फ, तो आपका बिल्कुल खर्चा नहीं होना. यू कैन एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच विद 0 इन्वेस्टमेंट ओनली व्हेन यू आर अ डिजाइनर योरसेल्फ. और उसमें भी आपको कुछ नहीं करना होता. यू जस्ट डिजाइन योर थिंग्स, यू स्टार्ट प्रमोटिंग देम ऑनलाइन, एंड देन आपका जो भी स्किल है आप उससे प्रमोट कर आगे, मतलब यू स्टार्ट विद इट, और उसके बाद में यू आर एबल टू डू इट. आप यू स्टार्ट गेटिंग प्रोजेक्ट्स. थोड़ा टाइम लगता है स्टार्टिंग में उसको बिल्डअप करने के लिए, बट धीरे धीरे करके आई विल टेल यू हाउ टू बिल्ड इट अप फर्दर, ताकि आपको ग्रोथ मिले, हाउ यू कैन स्टार्ट टेकिंग अप प्रोजेक्ट्स. ठीक है, तो इट हेल्प्स यू बिकमिंग अ ब्रांड. उसके अलावा द बिगेस्ट बेनिफिट इज, जॉब में छुट्टियां नहीं मिलती हमें, बट आवर जॉब इज सो गुड कि हम गए हुए हैं, वी आर इन अ होटल, हम बाहर हैं, वी आर एंजॉइंग एंड वी आर टेकिंग आवर लैपटॉप, वी आर वर्किंग, वी आर एंजॉइंग द सीन एंड वी आर वर्किंग. दैट इज माई फैंटेसी. मतलब मुझे दैट हैज बीन वन ऑफ माई फैंटेसीज कि आई शुड बी एंजॉइंग बट आई शुड बी वर्किंग टुगेदर. तो दिस यू कैन डू.
यू आर सिटिंग इन अ रेस्टोरेंट हैविंग योर वंडरफुल मील्स, एट द सेम टाइम अगर आपके पास थोड़ा सा काम आया या फिर दे आर सेइंग कि मेल का रिप्लाई करना है, व्हाटएवर यू आर डूइंग, यू क्विकली डू इट एंड यू विल बी फ्री। तो आप कभी भी कितनी भी छुट्टियां ले सकते हो, देयर इज नो सच थिंग। आपको लग रहा है मुझे लंबे वेकेशन पे जाना है, यू डोंट टेक एनी प्रोजेक्ट एट दैट टाइम एंड यू आर फ्री। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। एक्चुअली यू बिकम द इंचार्ज ऑफ योर सेल्फ। तो इसलिए आप अपने खुद के बॉस हो, आप खुद को ऑर्डर्स दोगे और आप खुद से लीव अपनी ग्रांट करोगे। सो दैट इट इज लाइक दैट। ओके, कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर, ग्लोबल एक्सेस है, अगेन आई टोल्ड यू। ठीक है, एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग, अगेन इट इज रिलेटेड टू एनी वर्क विच इज रिलेटेड टू कंप्यूटर। कंप्यूटर ही आपको वो एक्सेस देता है, क्योंकि वो आपको क्या इंटरनेट से कनेक्ट कर देता है। व्हेन यू आर कनेक्टेड टू इंटरनेट, यू आर कनेक्टेड विद द वर्ल्ड। नाउ यू आर रेडी टू टेक अप। आप जितना उसको कर सकते हो, यूज कर सकते हो, उतना ज्यादा। इट इज अ होल न्यू वर्ल्ड। अभी अगर आपने अभी तक कंप्यूटर यूज नहीं किया तो ट्रस्ट मी, एक बोलते हैं ना, एकदम डिफरेंट वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। जब आप कंप्यूटर यूज करना स्टार्ट करोगे, यू विल नो कि इट इज अ होल न्यू वर्ल्ड कंप्लीटली, जिसमें आप बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो आपने नहीं देखी, जो आप सीखोगे आगे, एंड सो मच टू एक्सप्लोर। सो ओके, ठीक है, तो ये तो हो गए, these were the benefits for women or for anyone. Now basically कंप्यूटर सीखना क्यों जरूरी है? कंप्यूटर सबसे पहले आपने ये सारा रीड कर लिया होगा ऑलरेडी। इट हेल्प्स यू वर्क फास्टर। कोई भी काम आप कर रहे हो, कंप्यूटर बहुत स्पीड अप कर देता है आपकी सारी चीजों को। इट कैन आंसर ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ना हमारे दिमाग में, इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग। आप कुकिंग कर रहे हो, कुकिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप ग्रो करना चाहते हो, आपकी स्केड्यूल से, आपकी लाइफ से रिलेटेड, आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपकी हेल्थ से रिलेटेड, आप फाइनेंस से रिलेटेड, एनी क्वेश्चन, चाहे वो कितना भी पर्सनल क्वेश्चन हो, चाहे वो कितना भी स्टूपिड क्वेश्चन हो, यू कैन गेट इट आंसर्ड ऑन इंटरनेट। जैसे आई यूज्ड टू बी वेरी क्यूरियस, मैं अपनी मम्मी के पीछे ही लगी रहती थी कि मतलब ये क्या है, ये कैसे हो रहा है। सिंस द डे आई हैव गॉट इंटरनेट, उस दिन से मुझे लगता है कि शी माइट हैव गॉट लिटिल बिट ऑफ रिलीफ, कि नाउ आई एम लुकिंग फॉर एवरीथिंग ऑन इंटरनेट, ऑन गूगल। तो it knows literally everything and you get genuine answers from there. Okay, now a computer can teach you almost anything. आपका कुछ भी सीखने का मन है, लिटरली कुछ भी, डांस और मार्शल आर्ट्स भी। ऐसा लगता है ना कि कुछ चीजें तो फिजिकली अच्छी हो सकती है, बट नो, आप अगर डांसिंग भी सीखना चाहते हो, अब तो ऑनलाइन क्लासेस इतनी अच्छी हैं डांसिंग के लिए भी, मैंने देखा है एप्लीकेशंस आ गए हैं विच एक्चुअली डिटेक्ट योर मूव्स। वो आपके मूव को डिटेक्ट करके बता देते हैं कि आपका मूव यहाँ से गड़बड़ हो रहा है, फिक्स दैट। और आप घर पे बैठ के, लाइक आई वांट टू लर्न डांस, और मेरा जो मतलब जो ट्यूटर है यहाँ पे कोई अच्छा नहीं है, आई वांट टू लर्न इट फ्रॉम यू नो कोलकाता और समवेयर जहाँ पे बहुत अच्छे डांस टीचर्स हैं, तो आई कैन एक्चुअली लर्न फ्रॉम देयर। तो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है फॉर एवरीवन। वी कैन लर्न फ्रॉम द बेस्ट टीचर ऑलवेज। सो यू कैन लर्न ऑलमोस्ट एवरीथिंग। लाइक जो माय मदर, शी हैज लर्न चाइनीज पेंटिंग। उनको पेंटिंग का बहुत शौक था। शी लिटरली लर्न चाइनीज पेंटिंग ऑनलाइन। उन्होंने ट्यूटोरियल्स वगैरह देख देख के शी प्रैक्टिस, एंड नाउ शी हैज बिकम सो गुड कि फट 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 शी डज इट लाइक दैट. Or initially it is actually very difficult to do, but with practice and with all the resources, and she has learned with one of those जो best है world में. Chinese, they are known for Chinese painting globally. उन लोगों से. So this is the opportunity that we get when we connect online. Understanding computer technology helps you with other technologies also. क्योंकि आजकल ना क्या हो रहा है, पहले आप लोग यूज करते थे, आई गेव यू द एग्जांपल ऑफ वॉशिंग मशीन्स और फ्रिज हो गया, जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, एसी, मोबाइल, रिमोट। आजकल तो टीवी भी ऐसा कंप्यूटर की तरह हो गया है कि यू हैव टू कनेक्ट विद इंटरनेट। एवरीथिंग इज टर्निंग इनटू दैट सेम थिंग ओनली। तो जब आप कंप्यूटर चलाना सीख जाते हो एक बार, क्योंकि कंप्यूटर इज द फादर ऑफ ऑल दैट, जो छोटे छोटे कंप्यूटर्स हम डेली लाइफ में एनकाउंटर करते हैं हर जगह पे, इट इज द फादर ऑफ ऑल दैट। वंस यू बिकम कंफर्टेबल विद दिस, आप सारी चीजें कंफर्टेबल हो जाओगे। यू विल, क्योंकि वो इंटरफेस बहुत छोटा होता है इसके सामने, तो you automatically become very natural with that also.
Okay, so reduce the chance of being tricked or scammed. क्योंकि ऑनलाइन, क्योंकि इतना एक्सपोजर है, आपका सारा डेटा ऑनलाइन होता है, मोस्टली हैकर्स भी होते हैं बहुत सारे, है ना, एंड दोज इनोसेंट पीपल हु डू नॉट हैव एनी नॉलेज अबाउट देयर, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट भी आजकल ऑनलाइन है, यू नो, आपके जो भी चीजें हैं, तो व्हेन यू बिकम कंप्यूटर में थोड़ा सा स्मार्ट आप जब हो जाते हो, तो यू आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, आपको कोई ट्रिक नहीं कर सकता, आपको कोई भी स्कैम नहीं कर पाएगा, बिकॉज यू विल बी स्मार्ट इनफ. Okay, resolve questions and problems and questions faster. जो भी आपके doubts हैं, problems हैं, कोई भी चीज है, like you know we are creating a project, जो भी आप कुछ report बना रहे हो, आपके business में everywhere you will need data, information आपको हर वक्त चाहिए होती है. You look for it in books. पहले हम क्या करते थे, जैसे ऐसे भी लिखना होता था स्कूल में, तो हम लाइब्रेरी जाते थे, फिर उसमें से we used to look for it in the books, है ना, यही करते थे पहले तो. बट अब क्या है, whenever you require anything, आप सीधा ऑनलाइन जाते हो, you copy it from there, और वहां से आप इंफॉर्मेशन लेते हो, and you use it in your projects, in your everything. तो आपको हर क्वेश्चन का और बहुत जल्दी आपको आंसर मिल जाता है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल जाता है. कंप्यूटर्स एंड रोबोट्स आर रिप्लेसिंग जॉब्स, दैट इज अ फैक्ट. कि आई टोल्ड यू कि कंप्यूटर्स जो है वो एक्चुअली रिप्लेस करता है. व्हेन यू बिकम गुड एट कंप्यूटर, one person who is very good at computer can actually replace so many jobs, क्योंकि it automates the work so fastly. When initially I learned computer, I got a project, और that project was, मतलब उसमें बहुत सारी छोटी छोटी इमेजेस हमें एडिट करनी होती थी. तो इनिशियली when we were doing, तो हम बहुत छोटा छोटा उसमें एडिट करते थे, और इस तरह से we used to do. But slowly we started finding, just a minute. Sorry, yeah. Am I audible? Am I audible? Okay. Just stop sharing. Can you please tell me that if you are able to understand everything or not? I hope you are not. You are able to understand all the points that I'm trying to convey, na? ओके, कहीं पे भी कुछ भी डाउट होता है, आई एम ऑल्सो गोइंग टू ट्राई टू कनेक्ट विथ एवरीवन पर्सनली. मैंने डिसाइड किया है कि ये वाले क्लास के लिए एटलीस्ट आई ट्राई टू कनेक्ट विथ एवरीवन, सो दैट कुछ भी प्रॉब्लम अगर आती है कहीं पर भी. ज्योति, यस, लेट मी अनम्यूट यू, जस्ट अ मिनट. यस मैम, यू आर नॉट, वीडियो नहीं आ रही है, यू आर नॉट विजिबल. Okay. Yes, that is because I turned off the camera. Can you see me now? Yes, ma'am. मैम, आई जस्ट वांट टू आस्क कि जैसे आपने बोला कि जॉब के लिए इसमें है, मतलब स्कोप है लाइफ, तो उसके लिए हमें सोशल सर्कल की रिक्वायरमेंट होगी, लाइक फ्रेंड सर्कल होगा या सोशल सर्कल होगा, तभी हम लोग जॉब के लिए कर पाएंगे आगे काम. राइट मैम. और या फिर आप लोग जैसे जो ये कोर्स है, इसमें हमें प्लेटफॉर्म देंगे कि मतलब पब्लिसिटी होगी या प्लेटफॉर्म होगा, तो लोग हमें उससे जानेंगे भी, कि हमें वहां से भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. I'll tell you मैम. फर्स्ट थिंग कि आप बोल रहे हो सोशल सर्कल की नीड होती है, सोशल सर्कल को बनाने का भी एक तरीका होता है. एवरीवन डज नॉट हैव सोशल सर्कल. सबसे पहले तो क्या होता है, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताती हूँ. सबसे पहले क्या होता है, आप अपने फ्रेंड सर्कल में, फ्रेंड्स और फैमिली में करते हो, फ्रेंड्स और फैमिली में स्टार्ट करते हो. उसके बाद मैम, यू आर नॉट ऑडिबल. Yes, just a minute. Yes, am I audible now? हाँ, so I was saying कि सोशल सर्कल बनाने का एक तरीका होता है. एवरीवन कैन मेक इट. ऐसा नहीं है कि हमारे पास सोशल सर्कल नहीं है तो वी विल नॉट बी एबल टू गेट जॉब्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. उसको बनाने का देयर इज अ प्रोसेस हाउ यू कैन स्टार्ट विद इट. आप उसको फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करते हो. उसके बाद आई टेल यू कंप्लीट प्रोसीजर कि कैसे आपका सोशल सर्कल बिल्डअप हो जाएगा.
Okay, so there is no such thing. Second thing कि are we going to provide you any platform? Yes, we are going to create a Facebook group जहाँ पे we all will be connected. Also, I'm going to promote it further कि here we have designers या फिर आप अपना you can share your work and I'll be promoting it further कि यहाँ पे we have some portfolios. If you require any of the work from here, you can get, because I have a good social circle, so I will be doing that. Okay, so that would be a benefit. Yes. वो बात ठीक है, ये चीज ठीक है. जैसे 3 months का टाइम है, जो 3 months में आप जो कोर्स कंप्लीट कराएंगे, तो उसके बेस पे मतलब उसमें स्कोप है. लाइक आपने भी बताया था कि आपने 6 महीने में कोर्स कंप्लीट किया था. हाँ मैम, मेरा कोर्स तो 3 साल का था. मेरा एक्चुअली एजुकेशन ही इसमें है. आई एम बैचलर्स इन एनिमेशन एंड VFX एंड मास्टर्स इन ग्राफिक डिजाइन. तो मैंने तो इसका 6 साल का स्टडीज किया हुआ है. क्यूरियोसिटी यही थी इस चीज को जानने की कि जैसे 3 months में कोई कोर्स हम कर रहे हैं, जैसे मैंने गूगल किया अबाउट डिजाइनिंग कोर्स है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, कम से कम जो उसमें आया 1 year का है कुछ है. तो इसीलिए मेरे को था कि जिससे हम ये 2-3 महीने में जो चीज कर रहे हैं, तो इसका स्कोप है, वर्क फ्रॉम होम है, मतलब कर सकते हैं. I'll tell you, मैंने 3 साल का ग्राफिक डिजाइनिंग का बैचलर्स किया. ओके, 3 साल देकर, पर एक्चुअली मुझे जो काम आ रहा है ना अभी, जो मैं अभी तक यूज कर रही हूँ, दैट इज जस्ट आई थिंक 2 or 3 months ऑफ लर्निंग. बाकी का वो सारा वाज नॉट यूजफुल. क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, जब आप ना प्रोफेशनली किसी भी इंस्टीट्यूट में सीखने जाते हो, मेरा जो पर्पस है इस कोर्स का वो ये है कि यू लर्न ओनली व्हाट इज रिक्वायर्ड. अब जैसे स्कूल में हम पूरा सीखते हैं, है ना, स्कूल में वी लर्न एवरीथिंग, बट एक्चुअली हमारे लाइफ में कितना काम आता है, इट इज वेरी लेस. So why not to learn only that which is required? क्यों सीखना एक्स्ट्रा चीजें? That means it's only a summary. मतलब summary हमें मिल जाएगी तो we'll do everything. नहीं मैम, summary is different. summary का मतलब होता है कि मैंने आपको सॉफ्टवेयर बताया, उसका ऊपर का बताया and done. नहीं, यहाँ पे what I'm doing, I'll be teaching you those stuff जो आपको एक्चुअल में काम आएगा. बहुत सारी चीजें. अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, फोटोशॉप में डिजिटल पेंटिंग होती है. डिजिटल पेंटिंग का एम होता है कि हम डिजिटली इतना अच्छा पेंट करें कि वो रियल जैसा दिखे. बट वाई टू पेंट विच लुक्स लाइक रियल, जब हम एक फोटो को जल्दी से एडिट कर सकते हैं. अब डिजिटल पेंटिंग इटसेल्फ टेक्स 2-3 months टू लर्न. और मैम एक चीज और बताइए, जो ये फ्रीलांस है, लाइक ग्राफिक तो समझ आ रहा है, फ्रीलांस है क्या चीज, व्हाट इज फ्रीलांस? और इस मतलब ये इसके बारे में मैं जानना चाहूंगी. फिर क्वेश्चन तो तब पूछूंगी ना, पता होगा जब. राइट. ठीक है, मैं आपको बताती हूँ फ्रीलांसिंग क्या है. फ्रीलांसिंग एक्चुअली जॉब में क्या होता है, आप एक बिजनेस में जब जाते हो ना, एक बिजनेस के अंदर ही आप जॉब कर रहे होते हो, है ना. पर वो जॉब जो है, जो आपका बॉस है या फिर जो आपका मेन पर्सन है, वो क्या कर रहा है, मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी है जिसमें आप जॉब कर रहे हो, बट वो कंपनी क्या कर रही है, वो प्रोजेक्ट्स उठा रही है अपने क्लाइंट से. तो वो कंपनी फ्रीलांसिंग कर रही है. ओके, वो प्रोजेक्ट्स उठा रही है, फिर वो अपने एम्प्लॉइज को दे दे रही है कि ठीक है थोड़ा थोड़ा तुम लोग करो, देन दे आर पेइंग यू. ओके, मतलब ये चीज भी आप लोग देंगे हमें? नहीं मैम, हम नहीं देंगे. हम आपको सिखाएंगे कि आप कैसे ले सकते हैं. अच्छा, आप अपने खुद के सर्कल में काम करेंगे और वी विल टीच यू. क्योंकि देखिए, प्रोजेक्ट्स आपको कोई नहीं देगा, वो आपको खुद लेना होगा आपकी क्वालिटी के बेसिस पे. क्योंकि लोग आपको पहले रिकॉग्नाइज करेंगे, उसके लिए पहले आपको खुद को रिकॉग्नाइज करना है कि आप किस में अच्छे हो, क्या वो काम है जो आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता. हम सबकी होती है कुछ ना कुछ क्वालिटी जो बहुत अच्छी होती है. इस कोर्स में ना मैंने कुछ फ्रेमवर्क्स ऐड किए हैं, वो मैं इनमें शेयर करूंगी, जिससे यू विल बी एबल टू एक्सप्लोर योरसेल्फ आल्सो. आप एक्सप्लोर कर पाओगे कि मुझे किसमें करना है एक्चुअली. ठीक है, तो जो कंपनी है, तो आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो, आप अभी बॉस बन रहे हो उस कंपनी के. यू आर दी ओनली पर्सन उस कंपनी में, आप अकेले ही हो. और आप क्या कर रहे हो, आप प्रोजेक्ट्स ले रहे हो. अब मान लो आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ गए, है ना, जो मार्केट से आप ले रहे हो. तब आप अपने नीचे 2-3 लोगों को, ऐसे जो न्यू कमर्स होते हैं, उनको हायर करोगे और आप बोलोगे कि आई एम नॉट एबल टू वर्क अलोन, अब नाउ आई नीड हेल्प, तो आई एम पेइंग यू 20,000 30,000 पर मंथ, और अब मैं तुम्हें पे कर रही हूँ, तुम मेरा ये काम करो, करके मुझे दो, आई विल डिलीवर इट टू माय क्लाइंट्स. तो आप बिजनेस बनाना सीख रहे हो. यू आर गेटिंग माय पॉइंट. जब आप इसी तरह से आप ग्रो करते चले जाओगे, दैट्स व्हाई आई सेड कि आप अगर अच्छा करते हो, इट इज एंडलेस. इसका कोई एंड नहीं है, आप कितना भी कर सकते हो. If you're good at it, if you're passionate at it, and if you're giving your best. मतलब ये है कि आप प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, अब उसको कैसे एक्सप्लोर करना है आगे, कैसे सारी चीज वो हमें अपने अकॉर्डिंग देखनी है, जो एबिलिटी होगी हमारे अंदर. राइट, आई टेल यू टू एक्सप्लोर. हाँ, मैं आपको बहुत सारी चीजें, अब जैसे फ्रीलांसिंग के लिए वेबसाइट्स हैं बहुत सारी.
फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं है कि आपको एकदम अचानक से जाके कहीं पे भी करने लगना है। नो, देर इज सर्टेन प्लेटफॉर्म, वहां पे काम करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। अब जैसे व्हेन आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग, मैंने बहुत, आई टेल यू द स्टोरी, जब मैं व्हेन आई टीच यू फ्रीलांसिंग ना, तो मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ। आई लॉस्ट सो मच मनी जब मैं, आई वॉज नॉट इवन अर्निंग बट आई वॉज गोइंग इन माइनस। तो वो चीजें मैंने एक्सपीरियंस के साथ में सीखी कि ठीक है, ये चीज नहीं करनी है, ये गड़बड़ है, यहाँ पे मैं गलत कर रही हूँ। आई लर्न, और वो फिर मैंने सीखा। तो आई डोंट वांट यू टू डू दैट, क्योंकि ये दिस इज अ काइंड ऑफ लूप होल आप बोल सकते हो, जो वेबसाइट्स ने सेट किया हुआ है, जो नए नए लोग होते हैं ना, उनको मतलब उनसे अमाउंट लेने के लिए, क्योंकि वो प्रिपेयर फ्री करने में के काम लिए कर रहे होते हैं। उनको तो भी प्रिपेयर कर देते हैं कि इन फ्यूचर वो भी कुछ कर सकते हैं। हाँ, तो जो मिस्टेक एक्चुअली मैंने जो इतने सालों में सीखा ना, उसका ये कंक्रीट है पूरा, कि जो जो काम का है वो करो, और जो काम का नहीं है, नो नीड टू लर्न दैट। ओके, तो मतलब ये है कि जैसे क्लास में जो बच्चे अच्छे होंगे उनको हाँ, आप आगे भी उनको प्रमोट करोगे कि इस फील्ड में ये बेटर है तो वो जाए। जैसे क्लास में भी होता है कि मैम बोलती है डेफिनेटली बच्चा, मैम, सिर्फ उन बच्चों को नहीं, सभी को आई एम गोइंग टू ट्राई माई बेस्ट कि नहीं आप मैम लोगों का आप फील। सबको कर रहे हैं बट स्टिल जैसे होता है ना कि किसी में एक आपको लगता है कि ये इस काम को ज्यादा बेटर करेगा। लाइक ये भी हो जाता है ना, क्योंकि कई चीजें होती है जो हर किसी में नहीं है, हर किसी की भाई अकॉर्डिंग टू यू। और ये रीजन भी है कि भाई सब में अपनी अपनी एबिलिटीज होती हैं। राइट मैम, मेरे पास, आई ऑल्सो हायर डिजाइनर्स, मैं भी डिजाइनिंग ही करती हूँ, बट कई बार ऐसा होता है कि आई एम ऑल्सो हायरिंग डिजाइनर्स अपना वर्क ही आउटसोर्स करने के लिए। तो आप लोगों में से कोई अच्छा करने लगेगा, इफ आई थिंक कि हाँ शी इज डूइंग सो गुड, तो आई वही आई चीज मैं पिक यू कह अप। रही हूँ कि हाँ आपको आई आप कैन डू दैट पढ़ाओगे, ऑब्वियसली। जब आप हमें टीच करोगे उस टाइम आपको ऑब्वियसली पता लगेगा जो भी फीडबैक होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। डेफिनेटली, तो उससे आप सीखो, उससे भी हम ही सीख के, और आपको जब पता लग जाएगा कि ये चीज हो रही है तो आगे हाँ ऑब्वियसली उसको आप अपने आप प्लेटफॉर्म देंगे। राइट मैम, मैम वो तो होता ही है एक्चुअली, यू नो व्हेन यू स्टार्ट डूइंग गुड, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, आप जब आपकी फैमिली में, यू विल रियलाइज कि मान लीजिए आप डिजाइनर हैं, डिजाइनर का ना एक्चुअली बहुत बड़ा रोल होता है हर बिजनेस में। एवरी वन रिक्वायर्स अ डिजाइनर, हर वो पर्सन जो काम कर रहा है आज की डेट में, तो उसको डिजाइनर की नीड पड़ती है। यू विल रियलाइज कि आपके फैमिली वाले ही आपको कांटेक्ट करें, मेरे साथ होता है ना, एवरी वन इज कॉन्टेक्टिंग मी कि प्लीज डिजाइन माई डिजाइन। नहीं, हस्बैंड ने तो हमेशा मेरे को होता है, पहले ही बोल क्योंकि दिया है। एवरी वन रिक्वायर्स डिजाइनर। क्योंकि जैसे अगर हम किसी रूम के लिए भी, एक प्रॉपर आप रूम ले लो, घर में नॉर्मल रूम हम्म होता है या किचन होती है, हमें उसको हम्म कैसे मैनेज करना है सारी चीज, तो वो डिजाइनिंग तो हो गई ना, क्रिएटिविटी अपने माइंड की जैसे यूज करें। राइट और उसके लिए अगर हमें और प्रॉप्स वगैरह कुछ मिल जाते हैं तो वो और एक्टिव, वो चीज और अच्छी हो जाती है। राइट मैम, आप जब वही चीजें करते हो ना, आई एम टेलिंग यू ना कि मैंने भी बहुत सारी, आई हैव लर्नड इवन 3D, मतलब जो गेम्स में जो मॉडलिंग वगैरह होती है ना, मैंने वो सारा भी सीखा हुआ है। बट एक्चुअली जो मुझे अभी काम आ रहा है, हमारी ना मेंटालिटी एक है अपनी, शायद इंडियन मेंटालिटी है ये, कि बहुत मेहनत करेंगे तो ही बहुत अर्न कर पाएंगे, है ना, ऐसी मेंटालिटी है। हार्डवर्क इज इक्वल टू, मतलब उतना अर्निंग, 10 घंटे मेहनत किया तो 10 घंटे का पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं होता। वेन यू स्टार्ट वर्किंग स्मार्टली, और जब आपका वर्क में क्वालिटी आती है, तो आप 10 घंटे का अमाउंट 1 घंटे में ले लेते हो, पता है कई लोग क्या उतनी करते हैं, एफर्ट्स के साथ। अमाउंट ले लेते हैं सारा, ठीक है। अब जैसे कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा होता है, लाइक मकान बनाने वाला बिल्डर क्या करता है, पैसे लेता है हाँ और हाँ नीचे लेबर को लगा देता है, वो सारी लेबर काम करती है, मेहनत तो लेबर करती है, वो तो अपना बैठ के मजे से पैसे रख के, पैसे उनको देने थोड़े थोड़े, अपना बेनिफिट उसके पास है। राइट। तो ऐसा भी Asta नहीं है ma'am, I'm कि coming to you. After her, I'll come to you. Yes, ma'am, please continue. बस इतना ही था मेरा, अब आप और किसी का क्वेश्चन लो। थैंक यू सो मच। ओके। Yes. Pooja is saying smart work equals hard work. It is true. Smart work ही actually, आप जब, आजकल यही चलता है कि आप जितना, आपको पता है कॉपी राइटिंग एक स्किल है, I'll tell you about that. जिस कई लोग राइटिंग में बहुत अच्छे होते हैं। कॉपी राइटिंग इज समथिंग, जैसे कोई ब्रांड है, अब मान लीजिए वी आर हैविंग आर्टजियो, आर्टजियो के लिए मुझे एक ऐसा पैराग्राफ लिखाना है विच आई वांट टू शेयर इट विद माय कस्टमर्स, जो इतना इफेक्टिव हो कि एक पैराग्राफ में विद इन 2-3 लाइंस मेरा जो एम है हमारे क्लासेस का, हम क्या डिलीवर करें, वो डिलीवर हो जाए। नाउ एवरीवन इज नॉट गुड विथ वर्ड्स, है ना, कई लोगों का जैसे बहुत अच्छा नहीं होता कि हम लैंग्वेज को, वर्ड्स को कैसे यूज कर रहे हैं। तो इतना इतना छोटा लिखने के लिए, सिर्फ जस्ट फॉर राइटिंग फ्यू लाइंस, दे चार्ज अ गुड अमाउंट, बिकॉज वी आर वेरी वेरी गुड एट राइटिंग, है ना। कई लोग पोएम्स लिखते हैं, अब कई लोग होते हैं बहुत अच्छी पोएट्री करते हैं। वन ऑफ माई मासी ऑल्सो डज वेरी ब्यूटिफुल पोएट्री। तो वो एक्चुअली उसको कैसे यूज कर सकती है, शी कैन एक्चुअली स्टार्ट राइटिंग फॉर ब्रांड्स। वो उनके लिए छोटे छोटे जो जिंगल्स होते हैं,
है ना, और इस तरह की चीजें, मतलब कोका कोला और इस टाइप का, ये तो हो गया वन लाइन जिंगल, बट कईयों का पूरा वो होता है, एक पोएम टाइप का होता है, तो एडवर्टाइजिंग में एक्चुअली इट इज बीइंग यूज्ड, और उसके लिए फिर अगेन यू कैन चार्ज वेरी गुड अमाउंट। तो इस तरह से आप अपने स्किल को, डजेंट मैटर कि आप डिजाइनिंग में बहुत अच्छा होने की, डिजाइनिंग में अच्छे हो तो डिजाइनिंग तो कर ही रहे हो औरों के लिए, बट अपना खुद का भी ब्रांड अपने स्किल बेस्ड पे, कई लोगों का इंटरेस्ट अलग होता है, यू कैन डू दैट। यस, इवन दे चार्ज फॉर द आइडियाज। आपको पता है, इफ यू आर गुड एट गिविंग आइडियाज, अगर आप मैनेजमेंट में बहुत अच्छे हो, प्रोजेक्ट मैनेज ही कर रहे हो, बस कुछ नहीं कर रहे, उसके लिए भी प्रोजेक्ट मैनेजर्स आर बीइंग हायर्ड ऑनलाइन। बहुत बार ऐसा होता है कि जस्ट सिर्फ प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट करना होता है और पीपल आर लुकिंग फॉर समवन जो मेरा सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेज करे, कि डिजाइनर्स को कनेक्ट करे क्लाइंट से, उनका जो भी चेंजेस हैं वो करे, तो उस चीज के लिए भी दे आर हायरिंग। बहुत सारी जॉब्स आर, आई टेल यू। ओके, सो आस्था गर्ग, यस मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Hello, hi. Hi ma'am. I want to know, you will teach like wedding videos, invitations. We need all these things regularly in our life. Birthday invitation posters or Yes anything ma'am. for advertisement. I'll tell you. देखिए, दो तरह के डिजाइन होते हैं, एक तो होता है स्टिल, एक होता है मोशन में, है ना, जो मूव कर रहा है थोड़ा सा। हम ग्राफिक्स, जहां पे आता है ग्राफिक्स, ग्राफिक्स का मतलब होता है स्टिल। ग्राफिक्स डज नॉट मीन एनीथिंग विच इज मूविंग। ओके, तो हम ग्राफिक्स के कोर्स में अभी ग्राफिक्स करने वाले हैं सिर्फ, मतलब आप पोस्टर डिजाइन करना सीखोगे, बट दैट वुड बी अ स्टिल पोस्टर। आप वेडिंग कार्ड भी सीख रहे हो, तो दैट इज गोइंग टू बी स्टिल। अगर आगे जैसे रिक्वायरमेंट आती है तो उसके बेसिस पे ना, आई टीच यू मूविंग थिंग्स ऑल्सो। जैसे अगर हम आगे कभी दोबारा से, वी कैन क्रिएट पार्ट 2 ऑफ दिस कोर्स ओनली, अगर आगे जैसे रिस्पॉन्स आता है तो हम उसमें वी कैन लर्न वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग, ये सारी चीजें वी कैन इंक्लूड। जितना मुझे आता है उतना मैं आपको सिखा सकती हूँ, दैट्स इट। है ना? ओके, anyone else wants to ask anything? Yes, for designing you will be needing a laptop. Laptop तो चाहिए, लैपटॉप के अंदर सॉफ्टवेयर भी चाहिए होता है। Yes मैम, आई एम अनम्यूटिंग यू। आपके पास में पीसी हो, चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे लैपटॉप हो, उन दोनों में मैं जो आपको सॉफ्टवेयर दूंगी, बेसिकली ग्लोबल लेवल पे 2 सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप। ओके, तो दोनों सॉफ्टवेयर आई विल गिव यू। उसका जो एक जो वर्जन मेरे पास है, दैट इज CS6, तो वो मैं आपको दूंगी, ठीक है। तो वो लाइफ टाइम के लिए होगा, आप उसको यूज कर सकते हो, मैं भी वही यूज करती हूँ। उसके थ्रू आप डिजाइनिंग कर सकते हो। अगर आपको बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन चाहिए, या फिर आप जैसे मैक यूज करते हो, तो आपको परचेज करना पड़ता है। अदरवाइज अगर आप विंडोज यूज करो तो यू आर गुड टू गो विद दैट। वो आपको मतलब एक, मेरी तरफ से एक लाइफ लॉन्ग असेट आपके पास हो जाएगा, जो आप हमेशा यूज कर पाओगे। ओके, सो फॉर विच यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। यस मीनू मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम, ये सॉफ्टवेयर के लिए पूछ रही थी, जो आप सॉफ्टवेयर देंगे उससे सब कुछ हो जाएगा, वीडियो बनाना या जो भी हम लोग को यूज करना है? मैम नहीं, सारे सॉफ्टवेयर का अलग रोल होता है। आई विल गिव यू मास्टर कलेक्शन। मैं आपको जो देने वाली हूँ, दैट इज गोइंग टू बी मास्टर कलेक्शन, जिसमें सारे सॉफ्टवेयर हैं, एडोब के सारे सॉफ्टवेयर हैं उसके अंदर। हम लेकिन सिर्फ 2 सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, एडोब इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप। उसके बाद जो प्रीमियर है वो भी उसी में आएगा मास्टर कलेक्शन से। वो इंस्टॉल करने का तरीका होता है, आपको अपने पीसी में कौन से इंस्टॉल करने हैं, इट डिपेंड्स ऑन दैट। ओके, तो अभी तो हम 2 यूज करेंगे, पर हर सॉफ्टवेयर का अपना अलग रोल है। साउंड जब हम एडिटिंग करते हैं, वी यूज साउंड फोर्ज फॉर दैट। वीडियो के लिए हम अगर मैकबुक पे कर रहे हैं तो हम फाइनल कट प्रो यूज करते हैं, अगर विंडोज पे कर रहे हैं तो हम प्रीमियर यूज करते हैं। तो वो अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं हर चीज के लिए। अच्छा मैम, जैसे कभी कोई क्लास मिस हो गई तो उसका रिकॉर्डिंग रहेगा? हाँ, हर क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी। ओके, दिस इज गोइंग टू बी अ थ्योरी क्लास, ठीक है। स्टार्टिंग के 30 to 45 मिनट्स आई विल बी टेकिंग योर थ्योरी, और उसके बाद में, बिकॉज कॉन्वर्सेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो लास्ट का जो 15 मिनट्स वाला पार्ट है, वी विल कीप इट फॉर क्वेश्चन आंसर्स ओनली। तो जो भी आपके क्वेश्चन है, 15 मिनट्स नहीं, और भी ज्यादा भी ले सकते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। तो हम उसको ट्राई करेंगे कि हम क्वेश्चन आंसर कर पाए सारे। और आपको जो रिकॉर्डिंग मिलेगी, विद इन हाफ एन आवर और 1 hour यू विल गेट द रिकॉर्डिंग इन द एप्लीकेशन। तो आपको बाद में, अभी तो हमने कुछ भी स्क्रीन पे सीखा नहीं है अभी, बट व्हेन वी विल लर्न समथिंग ऑन द स्क्रीन, तब आप लोगों को, यू हैव टू प्रैक्टिस इट यूजिंग द रिकॉर्डिंग ओनली, है ना। तो आप रिकॉर्डिंग प्ले करोगे तब, और रिकॉर्डिंग आप प्ले करके उसमें से देख के यू विल प्रैक्टिस इट ऑन योर लैपटॉप, और फिर आप मुझे बताओगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे यू आर फेसिंग। तो उस तरह से ही होगा। ओके
Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, ma'am. Thank you. Yes, Kiran ma'am. Please unmute yourself. हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर लैपटॉप नहीं है तो हम ये कर सकते हैं क्या कोर्स आगे कंटिन्यू? हाँ मैम, लैपटॉप अगर आपके पास नहीं है तो इनिशियली तो यू कैन लर्न, मतलब आप देखकर जितना सीख पा रहे हो, एंड यू विल बी हैविंग द वीडियोस आल्सो। तो आप बाद में वीडियोस के थ्रू, जब भी लैपटॉप के बिना आप कुछ कर नहीं पाओगे मतलब इसमें, बट यू कैन स्टिल लर्न, क्योंकि कई लोग हैं जिनके पास लैपटॉप नहीं है, बट स्टिल यू कैन टेक द कोर्स, यू कैन लर्न अबाउट इट। और जब भी आपको लैपटॉप का एक्सेस मिलता है तो आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो थ्रू रिकॉर्डिंग्स। तो सारी रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, उसके थ्रू यू कैन डू दैट। ओके, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू। There will be more theory or practical? No, there are सिर्फ स्टार्टिंग की ही 1-2 क्लासेस हैं which is theory. ग्राफिक्स में भी अगेन, क्योंकि एक माइंडसेट होना जरूरी है ना, पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग, उसके बाद ही हम कर सकते हैं। तो होल 3 months आर गोइंग टू बी प्रैक्टिकल क्लास, इट इज नॉट गोइंग टू बी थ्योरी। सिर्फ अभी स्टार्टिंग के 1-2 क्लासेस हैं जिसमें मैं बेसिक्स वी आर डिस्कसिंग। जो यूजेस होते हैं ना ग्राफिक्स में भी, क्या है ग्राफिक्स, आपको पहले जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि समझ होना कि व्हाट यू आर डूइंग एग्जैक्टली, देन वी विल गेट इनटू इट। ओके, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी अ थ्योरी क्लास, दिस इज अ प्रैक्टिकल क्लास ओनली। बट हाँ, ये है कि स्टार्टिंग के क्लासेस तो हैव टू बी थ्योरी, क्योंकि उसके बिना, दैट्स व्हाई कई लोग दे वर सेइंग कि वी वांट टू टेक डेमो। तो मैंने इसीलिए बोला था कि डेमो से आपको बहुत ज्यादा आइडिया, क्योंकि प्रैक्टिकल क्लास तो 2-3 दिन के बाद स्टार्ट होगी। जो मतलब जैसे कल वाला क्लास है, कल वाली क्लास में आई विल स्टार्ट विद द इंटरफेस एंड ऑल। Okay. Yes, graphic softwares would be provided for free. Okay. So we still have 10 minutes left. Is there any other question? Khushi. Yes, Khushi. Unmute yourself. Hello, hope everything is fine, dear. I'm just little bit confused that in this course, like there is an image and a video part, but in this we will learn about the basically the image part, na? Yes, ma'am. जो ये वाला जो कोर्स है ना, इसमें we will be learning about इमेज नहीं है, ग्राफिक्स मतलब स्टिल डिजाइनिंग। देखिए क्या होता है, आप जब वीडियो भी करते हो ना, आप पहले उसे डिजाइन कर लेते हो, है ना, आपने जो फाइनल फॉर्मेट है वो डिजाइन किया, उसके बाद जो उसके एलिमेंट्स हैं उसको आप एनिमेट करते हो, जस्ट लाइक पीपीटी। अगर आपने कभी क्रिएट किया होगा प्रेजेंटेशन में हम करते हैं ना, टेक्स्ट डालते हैं फिर हम उसको एनिमेट कर देते हैं, सेम हैपेंस उसी तरह से। 3 months जो भी है ये, इसमें नॉट मतलब वीडियो पार्ट नहीं है, जस्ट जो ग्राफिक्स स्टिल है उसका लाइक इन अ फॉर्म ऑफ अ पीपीटी। यस। ओके, थैंक यू। यस मैम। ओके मैम, एक्चुअली सिर्फ 2-3 ही क्लासेस का सिलेबस है, 2-3 भी नहीं बोलूंगी। कल से वी विल स्टार्ट विद द स्क्रीन पार्ट। आज का जो थोड़ा सा पीपीटी में रह गया है दैट आई ट्राई टू कंप्लीट टुडे, और कल से हम स्क्रीन वाला पार्ट स्टार्ट कर देंगे जहाँ पे वी विल बी डूइंग थिंग्स प्रैक्टिकली, क्योंकि इतना सिलेबस नहीं है। बट यू कैन डू इट थ्रू द रिकॉर्डिंग्स, आप रिकॉर्डिंग के थ्रू कर सकते हो व्हेनेवर यू गेट टाइम, और उसके बाद में यू कैन कनेक्ट विथ मी जब भी, so that you know you'll be able to share the syllabus. I did initially, मैंने जो screen share किया था उसमें पूरा I had shared already. Okay. Is there any other question? Okay, so shall I move further? Proceed further? Okay, just a minute. Okay, so we will come back to our PPT. Yes. जैसे होता है ना कि इंग्लिश स्पीकिंग इज अ स्किल, इट इज एक्चुअली अ लैंग्वेज ओनली, है ना, कि एक लैंग्वेज ही तो है, बट इसको स्किल्स में काउंट किया जाता है कि आपके सॉफ्ट स्किल्स में आता है कि इंग्लिश स्पीकिंग आता है, तो ठीक है, आप अपने रिज्यूम में ऐड कर सकते हो। जस्ट लाइक दैट, कंप्यूटर भी अगर आपको अच्छे से आता है आप उसे मेंशन कर सकते हो, एंड इट इज समथिंग कंसिडरेबल। आपके जॉब के प्रोफाइल में आप उसको बहुत हेवी कर देता है, आपका जो रिज्यूम और प्रोफाइल है, आप उसमें अगर लिखते हो आई एम वेरी गुड एट कंप्यूटर, आई एम वेरी गुड विद इंटरनेट, तो वो आपके चांसेस बहुत बढ़ा देता है, इवन इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब और यू आर प्लानिंग टू अप्लाई फॉर अ जॉब इन फ्यूचर। जैसे कुछ बच्चे भी हैं क्लास में, तो आगे जाके जैसे वो करेंगे तो इट एड्स टू देयर पोर्टफोलियो अ लॉट। Computers can save time and money and can save and make you money. Computer, it is true कि आप, as I told you, बहुत सारे लोगों का काम आप कर लेते हो, बहुत बड़ा काम बहुत जल्दी कर लेते हो,
and you can make money also. Okay. And the favorite of all of us, online shopping we can do. So इसके बारे में तो I think we all know already, right? Okay. So we will be concluding the class now. First, we learned the basics of computer कि इसका roadmap क्या होने वाला है. What are we going to learn in this course? You can take the screenshots also if you want. ठीक है, this is the first thing. Then we learned what is actually a computer. I hope you all know by now computer क्या है, कैसे useful है, आपको कैसे help कर सकता है. I hope it is clear how it is useful, how it is making so many lives easy. Now the scope of computer, बहुत सारे professions हैं, मैंने mention किए काफी सारे. तो there are so many professions. ये एक broad categories है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे professions होते हैं which are being used in computer. Okay, जिसके through आप computers में बहुत अच्छा you can learn and you can do the jobs. Okay, if you're looking for a regular job also, in that case as well. Okay, then comes the part of computer. यहाँ से हम कल से start करेंगे because the time of the class is already up and I have my another class also. So we will learn about it in next class. We will be learning the parts of computer. अभी हमारा जो basic था computer के बारे में that we have learned. कल से we will start learning about computer, everything. उसके जो parts हैं, how interface and all that. Okay. This course, complete graphic designing course that you are learning, you will learn, सबसे पहले तो you will learn graphic designing, not just advertising, making a still advertisement. Advertisements भी कई तरह के होते हैं, logo भी होता है, आप stickers भी बनाते हो, बहुत सारी चीजें होती है, तो वो सारी चीजें आप सीख जाओगे. Okay? उसके बाद practice करना आपका काम है. I'm teaching you. Okay? आप थोड़ा सा practice करोगे. I'll be giving you quick tricks also. डिजाइन बनाने में एक्चुअली बहुत टाइम लगता है. आप एक डिजाइन बनाते हो, इट टेक्स आवर्स टू क्रिएट अ डिजाइन, बट देयर आर सम ट्रिक्स जिसके थ्रू आप फट से डिजाइन बना लेते हो एंड यू आर एबल टू डिलीवर वेरी गुड क्वालिटी. सो वी विल लर्न दोज स्किल्स आल्सो. नो, क्लास इज गोइंग टू बी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 4:30 to 5:30. Okay, and we will be giving the recording also. I hope you were able to learn something out of this class, and we will be meeting in next class. Okay, and from next class, I'll be giving you the framework. Framework is going to be chota sa homework that you have to do. It is different from homework basically. It includes a little bit of brainstorming. Okay, so from next class, we will start doing that. Can you give me a big smile at least so that I can know that, okay, you are happy? Because I just see blank, I just see the names and nothing else. So I'm really, I really don't know. Were you able to, you all were able to understand, right? Okay. Okay. Thank you so much. Okay. Thank you. Bye-bye. Bye.